السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین پہ ہوگی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ ہی کو علم ہے قیامت کا، کہ کب آئے گی قیامت، اور کسی کو علم نہیں، سمجھے، اور اللہ ہی بارش برساتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، سمجھا۔ یہ اہم مسئلہ ہے جو آج کل چل رہا ہے زمانے سے، اور ایک دم زور شور سے چل رہا ہے، سمجھا۔ اللہ فرما رہے کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ اللہ کا منشا کہنے کا یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لڑکا ہے کہ لڑکی کوئی نہیں جانتا۔ اب اس بات کو اکثریت لوگ، ماڈرن لوگ، عالم لوگ، اسکالر لوگ، اکثریت کیا بول رہے ہیں، نہیں پتہ چل جاتا ہے لڑکا کہ لڑکی، سونوگرافی نکالنے سے پتہ چل جاتا ہے، بول رہے ہیں نا اکثریت لوگ، اکثریت بول رہی ہے، بولے سائنس بتا دیتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی۔ اکثریت عالم، مفتی، مدرسہ، صرف 10% دنیا میں ہوں گے جو لوگ بولتے نہیں، سونوگرافی سے بھی پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات سچی ہے، سمجھے آپ۔ اللہ کی بات کو دنیا کی کوئی چیز نہیں کاٹ سکتی، رد کر سکتی، سمجھے آپ۔ سائنس اللہ کی بات رد نہیں کر سکتی، کاٹ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ سائنس کی بات کو رد کر سکتا، کاٹ سکتا ہے نا، سمجھے آپ۔ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی کوئی نہیں جانتا۔ سوچیے آپ، سائنس کی بات کو مان کے، مشین کی بات کو، لوگوں کی بات کو مان کے آپ اللہ کی بات کو رد کر رہے، ڈر نہیں آپ لوگ نے وہ نہیں کیے نا، سروے، آپ لوگوں نے سروے نہیں کیے، تحقیقات نہیں کی، سمجھے آپ، کچھ بھی مان لے رہے، اللہ کی بات رد ہو رہی ہے، ہونے دو، عالم بولا، سائنس بول رہی۔ ارے سوچو، آپ سروے نہیں کیا، آپ تحقیقات نہیں کیے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ سورہ نمل میں اللہ بولا ہے تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ یہ کہ تم نے علمی تحقیقات نہیں کی۔ سورہ نمل کھول کے نہیں کی، آپ تم نے علم کی تحقیقات نہیں کی، اس لیے تم جہنم میں چلے گا۔ اللہ کی بات کو جھٹلا کے تحقیقات نہیں کی، علم، نالج نہیں لیا اس مسئلے میں، سمجھے آپ۔ معمولی بات نہیں اللہ کی بات کو رد کر دینا۔ آپ لوگ جو رد کر رہے ہیں نا، ایک ایک بات، حدیث کے ذریعے، یہ سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، سب جھوٹ بات ہے۔ آپ سروے کرو، میں کراؤں سروے، اور بہت لوگ نے بھی بولا ہے میرے کو، اور آپ نیوز میں بھی پہلے دیکھیں گے، آج کل تو نہیں آتی، پہلے، سمجھے آپ، 1990 1988 میں تو بات آئی تھی نیوز پہ، سمجھے آپ۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لوگوں نے لڑکی سمجھ کے حملہ گرا دیا، حمل، بعد میں حمل گرانے کے بعد پتہ چلا رہے ہو تو لڑکا تھا، یہ نیوز میں آئی تھی، سمجھے آپ، ٹی وی کی نیوز میں آئی تھی، سمجھے آپ۔ سوچیے آپ، گرانے کے بعد پتہ چلا لڑکا لڑکے، اور میں ذاتی طور پہ اس کی تحقیقات کرایا ہوں، سمجھے آپ۔ پہلے ایک ہمارے دوست تھے، وہ ڈرائیور ہے، نوکری کرتے ہیں، سنیے آپ یہ سب باتیں، تحقیقاتی علمی باتیں، نالج کی باتیں، سمجھے آپ۔ وہ نوکری کرتا تھا، گجراتی مارواڑی لوگ کی کار چلاتا تھا، تو اس کے سیٹ لوگ جا کے چیک کر کے آئے، سونوگرافی کر کے، سمجھے آپ۔ کیا بولے، گاڑی میں میاں بھی بات کر رہے، ڈرائیور تو چلا رہا، ہمارا دوست مسلمان ہی ہے، ہندو لوگ کے یہاں کام کرتا تھا، گجراتی مارواڑی، تو لوگ پیچھے آ کے بیٹھے، بولے ہاں بہت خوش، لڑکا ہوگا، سمجھے آپ، بول کے خوش ہو گئے، خوب تیاری کر رہے، مالدار لوگ تھے۔ پھر 2-3 مہینے بعد یہ گئے ہاسپٹل لے کے، ان کو ہاسپٹل میں میاں بیوی گئے، ڈیلیوری کا ٹائم تھا، ڈرائیور تو نیچے ہی تھا، اوپر جا کے بیوی کو ایڈمٹ کر کے 2-3 گھنٹے بعد آیا ہاسپٹل سے، آ کے بیٹھ گیا پیچھے مالک، بیوی کی ڈیلیوری ہو گئی اوپر۔ پھر ڈرائیور گاڑی چلاتے، پوچھا کیا ہوا، سیٹ مالک سے پوچھا کیا ہوا، بولے لڑکی ہو گئی۔ سوچیے آپ،
सोचिए आप, क्या बताई थी सोनोग्राफी ने? पेडर रोड, ग्रैंड रोड है ना उधर, पालकी वाला कोई दवाखाना है, डॉक्टर पालकी वाला, मालदार, बहुत पैसे लेता उस जमाने में। तो अब की बात है 1990 की बात है, ये 91-90 की, समझे आप? तो क्या पता चला, उस जमाने में अल्लाह ने मेरे को हिदायत दे दिया कि ये सब चीटिंग चल रही। तो बोले सोनोग्राफी लड़का बताए कि लड़की होगी, समझे आप? ये एक वाक्य आपको सुना है मैंने। फिर बाद में एक हमारे पहचान वाले दोस्त हैं, उनको भी डॉक्टर ने सोनोग्राफी निकाला, बोला लड़का होगा, समझ रहे आप? तो भाई डिलीवरी के बाद लड़की हो गई। तो वो खुद मेरे को बोला आप सच बोल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। सोचिए आप, ये 8-10 साल बाद की बात है, 2002-2004 की बात है, ये दूसरी वाली, समझा? मैं तहकीकात कर रहा हूँ। फिर जाकिर नाइक क्या बोला प्रोग्राम में, जाकिर नाइक ने बोला हाँ आजकल टेक्नोलॉजी साइंस बता देती है कि लड़का की लड़की पता चल जाता है, समझा? बोले वो अल्लाह का कहने का मतलब क्या है, वो क्या बनेगा कल कोई नहीं जानता, माँ के पेट में क्या है, मैंने चोर है कि डॉक्टर है, ड्राइवर बनेगा कि साइंटिस्ट बनेगा, समझा? यानी वो क्या बनेगा वो बोल रहा है अल्लाह ताला, उसका कहने का मतलब है। जाकिर नाइक ऐसा बता रहा हूँ अवाम में, मैं भी बैठा था वो प्रोग्राम में, समझा? क्या बोल रहा है जाकिर नाइक? अल्लाह की बात का कहने का मतलब वो कल क्या बनेगा बाहर आके, चोर बनेगा कि पुलिस बनेगा, डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा कि बिजनेसमैन बनेगा, मैकेनिक बनेगा, तो वो कहना चाह रहा है। अरे भाई क्या बोलूं अब मैं जाकिर नाइक जैसे आदमी, कोई नहीं जानता माँ के पेट में क्या है, और कोई नहीं जानता कल वो क्या करेगा, अमल, कल क्या अमल करेगा, नेक या बुरा, डॉक्टर बनेगा कि चोर बनेगा, साइंटिस्ट, पायलट बनेगा कि कार का ड्राइवर बनेगा कि रिक्शा का ड्राइवर बनेगा, समझा? उसको तुम वहां का घसीट रहे। 5 चीज की बात है ना वहाँ। कयामत का इल्म अल्लाह को है, पानी बारिश वही बरसाता है, माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता। चौथा है कि कोई नहीं जानता कल क्या अमल करेगा, और 5वां क्या है, कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन पे उसकी मौत आएगी। 5 चीज का इल्म अल्लाह बता रहा है, समझ रहे आप? सोचिए अब ये 5 चीज का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, समझा? अब वहाँ वो क्या कल अमल करेगा बोलते अवाम आयत को घुमा दे रहे, पब्लिक को धोखा चकमा दे रहे, समझा? अल्लाह ताला बोल रहा माँ के पेट में क्या है, क्या है माँ के पेट में क्या रहता है, बच्चा ना लड़का या लड़की दो ही होता है, तो वही जानने की कोशिश कर रहे हैं ना सोनोग्राफी से, समझा? फिर मैंने जाकिर नाइक का जो वीडियो शूटिंग निकालता है वो हमारा दोस्त है, हमारे घर के पास रहता है, समझा? उसका नाम भी आप असलम मानकोटकर ऐसा कुछ है, असलम नाम है लेकिन सरनेम कोकनी है। उससे मैंने पूछा भाई जाकिर नाइक ऐसा बोल रहा है लेकिन कुरान में तो ऐसा है, जाकिर नाइक बोल रहा है वो कल क्या अमल करेगा। यहाँ अल्लाह बोल रहा माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, लड़का है लड़की, ये मुराद अल्लाह का कहने का, कोई नहीं जानता। तो बोला हाँ जाकिर नाइक बोला, लेकिन मैं ये आयत गौर करो, आयत दिखा, तो उसने बोला कि हाँ यहाँ तो ऊपर आयत में है कि माँ के पेट में क्या कोई नहीं जानता, और कल क्या अमल वो करेगा, उसको तुम माँ के पेट में वाली में कहाँ ज्वाइन कर रहे वो बात, समझा? तो बोला ठीक है, मेरा एक दोस्त है लंदन में, वो यही काम करता है, डॉक्टर है, वो सोनोग्राफी निकालता है, लड़का के लड़की। तो मैं बोला अरे बहुत अच्छी बात है, खुशी की आपका दोस्त है तो फोन कल ही लगाओ, पूछ लो जाकिर नाइक सही बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ कुरान जो बोल रही हूँ, समझा? मैंने तो सर्वे करके देख लिया, कई लोग को लड़का बोल रहा है लड़की हो जा रही है, समझा? टीवी की न्यूज भी आई थी पहले, समझे कि भाई बहुत लोग ने अमल गिराया, तो बाद में पता चला कि लड़का है, लड़की सोच के अमल गिरा देते, हुआ लड़का, लड़का था। तो ऐसी कई बहुत सारे केस। तो मेरे दोस्त ने जाकिर नाइक का खास वीडियो शूटिंग जाकिर नाइक के प्रोग्राम में निकालता है 1988, 1990 में, 1995 में, 96, 97 में। अभी फिलहाल तो उसका इंतकाल हो गया बेचारा। उसने लंदन से फोन लगवा के, दोस्त है उसका, सलाम दुआ बातचीत होती, उसने पूछा उससे कि भाई ये क्या माजरा है, आप लोग को क्या पता चल जाता सोनोग्राफी से, जो आप बताते हैं कि लड़का है लड़की है बताते आप लोग, तो आपको पता चल जाता है कि मेल है फीमेल है, मर्द है कि औरत। तो उसने बताया, जिगरी दोस्त था उसका, वो तो बोलो आप लंदन में यही बिजनेस करता है, डॉक्टर है। उसने बताया कि भाई हम लोग को दिखता कुछ नहीं है, समझा? कुछ नहीं मालूम पड़ता, प्राइवेट पार्ट दिखता ही नहीं है,
समझा आप। पोजीशन ऐसी रहती कि दिखे नहीं, और भी 3 झिल्ली 3 पैकिंग रहती, माँ का पेट, फिर अंदर एक और, फिर अंदर एक और। तो उसने बताया कि सब गलत बात है, हम लोग को पता चलता नहीं, ये बिजनेस है हमारे पास आता तो हम लोग निकाल के अंदाजे से जजमेंट देते, अंदाजा जजमेंट, राइट है कि रॉन्ग नहीं मालूम। बोले कई केस ऐसे होते हम बोलते लड़का तो हो जाता है, फिर बोलते कभी किसी को लड़की, तो लड़की हो जाती, ऐसा बोलने पे जजमेंट पे दिखता नहीं। और फिर बहुत से फेल भी होते हैं, लड़का बोले लड़की हो गई, ऐसा भी होता है। उसने बताया कि ये परफेक्ट नहीं है और ये दिखता ही नहीं, परफेक्ट दिखता ही नहीं। सोचिए आप, ये अंदाजे के तीर है। और अहम बात यह है कि ये जो बिजनेस है ना सोनोग्राफी का, ये पूरे वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है। तो एक्चुअली ये चीटिंग करने का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो लंदन के डॉक्टर ने भी बताया था ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, यूरोप, अमेरिका में, एशिया में, हर जगह। तो इतने बड़े बिजनेस का राज फाश होने नहीं देते, समझे आप। मीडिया प्रोपेगेंडा करती कि नहीं ये सही है। सोचिए आप, ये लोग सब होशियार रहिए, सब चालबाजी से। तो वही अल्लाह की बात को मानना, साइंस टेक्नोलॉजी को रद्द करना, अगर अल्लाह के खिलाफ है तो, नहीं तो फंस जाएंगे आप लोग। अल्लाह की बात रद्द, अल्लाह बोल रहा है कोई नहीं जानता माँ के पेट में, क्या आप बोलते जानता है। अल्लाह की बात का अपोज कर रहे, मुखालिफत। बहुत भारी बात बता रहा हूँ आपको मैं, समझे आप। अभी हाल ही में हमारा एक और दोस्त, उसके भाई लोग को डॉक्टर ने बोला लड़का हो गया, सोनोग्राफी निकाले, लड़का हो गया, कपड़े वपड़े आ गए लड़के के, छोटे बच्चे के लड़का के कपड़े आ गए। 1-2 महीना पहले खुशी मना रहे, डिलीवरी हुई तो लड़की हुई। हमारा दोस्त जिगरी, उसका भाई उसने बताया। तो समझ रहे आप, अल्लाह की बात सच्ची है, अल्लाह की बात को आप झुटला नहीं सकते। अगर झुटलाएंगे तो सीधा जहन्नम। सोचिए आप, किस किस मसले में आप झुटला रहे हैं, कहाँ तो हदीसों में झुटला रहे हैं और यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी से झुटला रहे अल्लाह की बात। समझे आप। अल्लाह ताला दिमाग देता है ना, अकल, दिमाग, साइंस, टेक्नोलॉजी अल्लाह दिमाग में डालता है तो इंसान बनाता है। तो अल्लाह अपनी बात के खिलाफ थोड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी दिमाग में डाल देगा कि बनाओ और मेरी बात को झुटलाओ। समझ रहे आप, गौर से सुनिएगा आप, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ बहुत अहम है। इसी पे कितने लोग जन्नत जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह की बात को झुटलाना कुफ्र, उसका ठिकाना है ना। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। जिन लोगों ने हमारी बात को झुटलाया, इनकार किया और झुटलाया, वो लोग जहन्नुम में जाएंगे, उसमें हमेशा रहेंगे। सोचिए आप, कहीं हदीस से आप अल्लाह की बात को उड़ा दे रहे, कुरान की बात को रद्द कर रहे, हदीस ला के कुरान को रद्द कर रहे, अभी साइंस टेक्नोलॉजी ला के अल्लाह की बात को रद्द कर रहे। सोचिए आप, अल्लाह की बात कुरान में क्या क्या है। तो इससे बचिए आप। ये जो मैं बोला बहुत अहम बात है, समझे आप। लड़का लड़की हो तो अंदाजे से, तो बिना सोनोग्राफी के तो मैं और आप बता सकते हैं। आप भी 10 औरत प्रेग्नेंट को आप बोलो, 10 में से 5 को बोलो लड़का लड़का लड़का, 5 को बोलो लड़की 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 लड़की। बिना सोनोग्राफी के आप बोलो, उसमें से 2-4 सही भी होगा आपका, 2 ही चीज होने वाली, लड़का लड़की। 5 को आप बोलो, 10 औरत बोल लो लड़का लड़का लड़की लड़का लड़का लड़की लड़की, तो 10 में 2-4 तो आपकी सही हो जाएगी। तो वैसे मशीन का भी हाल है, अंदाजे के तीर, कुछ नहीं मालूम ही नहीं पड़ता, समझे आप। सोचिए, अल्लाह ने वही बात बोला, कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है। अब आप बोलेंगे जानता है, तो अल्लाह से आप आर्ग्यू कर रहे हैं, अल्लाह की बात का अपोज, मुखालिफत कर रहे हैं, अल्लाह की बात को आप झुटला रहे हैं, समझे आप। गौर से सोचिए आप कि किस किस तरीके से आपको बहकाया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ दुश्मनों ने ही दिया ये सब, कि बोलो हाँ अल्लाह की बात, अल्लाह बोल रहे नहीं जानता तो इनको सोनोग्राफी से बेवकूफ बनो। बोले हाँ हाँ जानता है, तो 10-50 आ रहे सोनोग्राफी कराने, 10 की सही होती तो वो बोलता हाँ बरोबर है, सोनोग्राफी बरोबर बोला था। बेवकूफ बना रहे ऐसा अंदाजे से। तो मैं भी बोल दूं 20 औरत को, 10 को बोल दो लड़का लड़का, 10 को बोल दो लड़की लड़की, तो उसमें 2-4-8 तो सही हो जाएगा ना, अंदाजे कितनी है। अल्लाह बोल रहा है जो बात सच्ची, कोई नहीं जानता, परफेक्ट, 100 में से 100 आउट ऑफ 100। भाई आपको कोई भी मसले में अंदाजे वाली चाहिए कि परफेक्ट चाहिए, अंदाजे के तीर, सच झूठ, समझा। वहम और गुमान पे चल रहे लोग, है ना। अगर तुम इन लोगों की अक्सरियत की बातों पे चलोगे, अक्सरियत लोग बोलते बताती है सोनोग्राफी, अक्सरियत बोल रही ना,
اللہ बोल रहा है और मैं और अच्छे आलिम बोल रहे हैं। आप भी सर्वे करके देख लो, आपके मोहल्ले में जितने लोग सोनोग्राफी निकाले पहले पूछ लेना क्या बोला आपको सोनोग्राफी डिलीवरी के 1 महीना पहले पूछ लो आप क्या बोला। 10 मोहल्ले में सर्वे कर लो, रिश्तेदार दोस्त की क्या बोला सोनोग्राफी में 1 महीना पहले पूछ लो, फिर देखो डिलीवरी में क्या निकलता है, आपको खुद ही पता चल जाएगा सच क्या झूठ क्या, समझे आप। तो अक्सरियत की बातों पे चलेंगे तो उनको अल्लाह की बात से भटका देंगे, है ना, समझे। वो अल्लाह बोल रहा है ना सूर्य अनाम 116 में, अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद है गुमराह है, अगर तुम उनकी बातों पे चलोगे तो तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। अल्लाह का रास्ता क्या है? अल्लाह का रास्ता है कुरान है। इन हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9। ये कुरान वो रास्ता बताता है जो बिल्कुल सीधा है। अल्लाह का रास्ता क्या है? ये कुरान वो रास्ता बताता है, अल्लाह का रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। तो सूर्य अनाम 116 में बोले अक्सर लोग जो जमीन पे आबाद है घूम रहा है, अगर तुम उनकी बातों पे चलोगे तो वो तुमको अल्लाह के रास्ते भटका देंगे। वो सिर्फ वहम और गुमान और ख्यालात पे चलते हैं, अटकल के तीर लगाते, अटकल के तीर चलाते, अंदाजे के तीर चलाते, अंदाजे से बोलते हैं, समझे आप। बोल दिया अल्लाह ने सब बात सूर्य नाम 116 में, अक्सरियत लोग गुमराह है, अक्सरियत पे मत जाओ, अल्लाह की बात पे चलो, समझे आप। और अल्लाह की बात को झुठलाओ मत मॉडर्न के चक्कर में। साइंस टेक्नोलॉजी इंसान कर रहा है काम, और अल्लाह ताला साइंस टेक्नोलॉजी और इंसान सबको पैदा करने वाला है। वो जो बोला है कयामत तक के उसकी बात सच्ची, कोई नहीं जानता, अल्लाह बोल दिया तो खलास, कोई नहीं जानता। आप लोग सर्वे करके देख लो, मैं तो सर्वे करके देख चुका हूँ सब जगह मालूमात करके। हाँ, गुमराह कर रहे जो उससे अलर्ट हो। माँ के पेट में क्या मतलब, अलग बोलते क्या अमल करेगा, नेक बनेगा कि बुरा बनेगा, डॉक्टर बनेगा कि चोर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि पायलट बनेगा, ये बोल रहे हैं। ये नहीं माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता कल क्या अमल करेगा। वो उसमें क्यों जोड़ रहे हैं माँ के पेट में क्या है, समझा। माँ के पेट में क्या है, इससे मुराद लड़का और लड़की है। क्या देखता आदमी सोनोग्राफी में? डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, पुलिस बनेगा कि पायलट बनेगा, वो चेक कराते क्या सोनोग्राफी में? क्या चेक कराते सोनोग्राफी? माँ के पेट में क्या क्या चेक कराते? लड़का है कि लड़की, यही ना। तो वही तो बोल रहा है अल्लाह, माँ के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है दुनिया में। अल्लाह बोल दिया खत्म, अल्लाह की बात सच्ची। अवाम को गुमराह करते आलिम मुफ्ती स्कॉलर लोग। गौर फिक्र अवाम खुद कुरान में करे तो उसको जवाब मिल जाए, कोई नहीं जानता कल क्या अमल करेगा, नेक बनेगा कि बुरा, समझा। सोचिए आप, होशियार रहिए, तर्जुमे से पढ़िए, कुरान की बात को मत झुटलाइए, अल्लाह की बात को झुटलाए तो जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेगी। नमाज रोजा है जो साइड हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। अल्लाह क्या है, अल्लाह तो बोल दिया ना, मेरी बात को झुटलाया तो जहन्नुम में हमेशा रहेगा। ये थोड़ी बोला कि जो लोग नमाज रोजा करेंगे वो लोग झुटलाएंगे तो चलेगा, ऐसा थोड़ी बोला अल्लाह ने। अल्लाह बोला जो कोई अल्लाह की बात को झुटलाएगा, उसका इनकार करेगा, सब ये सब अल्लाह की बात है, उसका ठिकाना जहन्नुम में, समझा। बचिए आप, कुरान गौर से पढ़िए, तर्जुमे से, कुरान पे चलिए, आलिम मुफ्ती मदरसा अक्सरियत मत देखिए, नहीं तो फंस जाएंगे वहां। अगर अल्लाह की बात पे चलेंगे तो अल्लाह को बोलेंगे ना, अल्लाह ताला मैं इस कुरान की इत्तिबा किया, इसको फॉलो किया, आपकी बात को मैंने फॉलो किया और आप पे, तो आप बच जाएंगे, समझा आप। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।